Hi students, today we are going to start our new chapter, chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. This is chapter of 8th grade. In this chapter we are going to cover the topics secondary sexual characters, endocrine glands and hormones, as well as different endocrine glands and their secretion, different stages of life and all that stuff. First of all, we will start with different stages of life, and that different stages of life are 0 to 2 years time period of human being is called as infancy. Okay, जो छोटा बच्चा होता है बॉर्न होने से 2 years तक दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज इन्फेंसी. हम उसको इन्फंट बोलते हैं, वो चाइल्ड को वी आर यूज टू कॉल इट. Then childhood is started from 3 years to it will start from 3 to 12 years. Okay, सो 3 to 12 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है जनरली इट इज टेकिंग मेल एंड फीमेल का एक साथ लिया हुआ है. तो 3 to 11 ईयर्स या 12 ईयर्स, 11 ईयर्स अप टू 11 ईयर्स फॉर गर्ल चाइल्ड एंड फॉर दैट मेल चाइल्ड इट वुड बी 12 ईयर्स. Then adolescence will start. Adolescence is starting from 13 to or 12 to 19 years. That one year maybe plus minus would be there. Then adulthood is going to start from 20 to 40 years. ये adulthood है. Adult means the person which has enough maturity, and that persons that sex hormones are well developed, as well as they have the decision power, they can make good decision. That is adulthood. And after that the age group is old age, that is above 40 years. Above 40 years the people, उनको हम क्या बोलते हैं, old age बोलते हैं. And they are well experienced. Okay, because they went through this all the stages. So first of all infancy is stage of growth of baby from birth to 2 years. बर्थ टू 2 years का इन्फेंसी है. चाइल्डहुड 3 to 11 और 12 years आएगा. एडोलेसेंस इज द पीरियड विच इज वेरी सेंसिटिव एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ. ये जो एडोलेसेंस वाला है, दिस इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट, यू नो स्टूडेंट्स. सो this is the period of transition in which childhood to adulthood journey, that transformation is taking place. Childhood means that is innocent life. There is no tension. Whatever parents are telling very nicely, that obedient, most of the childs are obedient. They are used to listen their parents, and they are I can say they are innocent and obedient. Okay, so when that transformation is taking place, this 11 to 12 or 12 to 13, 11 to 12 in girls and 12 to 13 in boys generally, that transformation is horrible, because lots of hormones changes is going to take place in human being. And that's why to cope up in all situations is quite difficult for that particular child. It would be लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, it doesn't matter. But when this transformation is taking place, that is quite difficult to understand. This adulthood, it is a period between 20 to 40 years. Generally 20 to 40 years का जो time period होता है उसे adulthood बोलते हैं. And the time period in which most probably this human beings are giving birth to their offspring, that is adulthood का ये time period होता है. Everyone has a different perception, so they are taking their decision, but I'm giving the general statement. And old age after that 40, that is called as 40 years. Generally the time period of, it is not possible immediate 40 years के बाद that person is going to change in position of वो parent से grandparent बन जाता है. It is not, but most probably it is possible कि जैसे 50 के बाद तो generally granny and grandpa बनने ही वाले होते हैं, those they are having children and grandchildren in that way. But after 40 years का जो time period जिसे old age बोलते हैं, that people are having
वेरी गुड मैच्योरिटी, यू नो. उनका जो थॉट प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी स्टेबल. डिसीजन पावर इज ऑल्सो गुड and they have lots of experience. They went through lot of stages of life and experiences. So whatever the decision or whatever the suggestion they are giving you, you have to always think about it very carefully, so it will helpful to you in your life always. They could be your parents, your grandparents. Now we will discuss about the puberty. Okay, so what is puberty? It is a period when sex hormones are produced in boy or girl and they become sexually mature. So ये जो puberty वाला time period है, ये puberty means it is the time period when sex hormones, so boys में testosterone होता है, girls में they osteron होता है. तो this sex hormones are produced in बॉयज़ में डिफरेंट एंड गर्ल्स में डिफरेंट. एक्चुअली 23 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग. ओनली दिस one that chromosome is different in male and female. Otherwise 22 chromosomes are same. Only sex hormone is different and that's why we are able to differentiate male and female. Okay. And this is game changer actually, you know. This is game changer because we are not giving perfect required education to male and female child, and that's why they are attracted towards the things which are providing them wrong information. So my dear students, I would like to request you, you are in this time period, आप 8th class में हो, so you are more than the 14 years, आपका 13-14 में आप हो, you are experiencing this level, this transition period, and that's why you are having this syllabus in your textbook. So what you need to do, boys attain puberty at age of 14 to 15 years. ये जो this puberty है, it will found in boys comparatively girls late. Okay, and girls attain puberty at age of 11 years, generally 11 years. It is not possible always all girls will have this in 11 years only. Some girls can show 12-13 years also. It depends on the your genetic characters, whatever the body structure you have, and in this way. Okay, so person to person it quite differentiate, but most probably general word I'm using over here. So this puberty is attained boys in 14 to 15 years and in girls in 11 years. So what is this puberty? Puberty means there is secretion of sex hormones, different sex hormones. So what are the changes in teenagers? ये जो पुबर्टी लेवल अटेन करना है मीन्स चेंजेस इन टीन एजर्स. ये टीन एजर्स ही थे, दे आर गोइंग टू चेंज. अब उनका पुबर्टी लेवल आ गया है. क्लियर? सो इनका क्या होता है, सडनली इंक्रीज इन हाइट. बहुत वो 1-2 ईयर में सडनली इंक्रीज इन हाइट हो जाता है. चेंज इन बॉडी शेप, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सडन हाइट चेंज हो रहा है. उनके जो आर्म्स है वो दैट शो द, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कैन से ड्रास्टिक चेंजेस इन बॉडी. ये जो टीन एजर का चेंजेस है वो ड्रास्टिक चेंज यू कैन सी इन बॉयज और गर्ल्स. चेंज इन वॉइस में चेंज आएगा. आई होप यू ऑब्जर्व अपने खुद को, योर सेल्फ यू कैन ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स ऑल्सो. उनका बॉडी स्ट्रक्चर सडनली चेंज, जैसे हाइट बढ़ जाना, देन उनको स्टार्ट हो जाता है, उनका वॉइस है वो कैसे हो जाता है, थिक हो जाता है. एंड उनमें दे हैव लॉट्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस एंड lots of things are there, variation you can see, you can very nicely observe that variation in boys and girls also in teenagers when they are attaining the puberty level. Then increased activity of sweat glands का जो activity है वो increase हो जाता है, and that's why we can see जो when these boys or girls they are attaining this puberty, most probably the children they are having the problem of उनको pimple, acne का problem होता है. It is due to the increased activity of sweat glands.
जो ग्रोथ है वो सडनली हो जाता है, रैपिडली हो जाता है, इसलिए वो बॉडी में दिख जाता है, वेरी डिस्टिंक्टली यू कैन आइडेंटिफाई. Now, development of sex organs, it is very crucial thing actually. Development of sex organs started. So production of sex hormones that stimulate gametes production. ये gametes क्या है? Gametes means sex organ जो है, जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एग्स होते हैं. आई हैव टॉट यू इन योर दैट लेसन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में. एंड मेल गैमेट, जैसे मेल गैमेट स्पर्म है एंड फीमेल गैमेट एग्स है. ये स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड दिस एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज एंड ऑल दैट स्टफ. सो इट इज स्टार्टेड. ये पुबर्टी आ गई मीन्स दिस थिंग्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग. ये इसका जनरेशन एंड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ड्यू टू दिस, ये सडनली ये सब चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं बॉडी में. सडनली इट इज हैपन एंड दैट्स व्हाई द मेंटालिटी ऑफ दिस टीनएजर्स आर डिस्टर्ब्ड, क्वाइट डिस्टर्ब्ड. They want to discuss everything with their friends. They want to make distance with their parents because the age gap between parents and this children, they can understand. मुझे जो हो रहा है मेरे पेरेंट्स समझ पाएंगे क्या? बिकॉज बॉडी शेप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. जैसे गर्ल्स में तो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड बॉयज़ में वो ड्रीम में चले जाना, देन गर्ल्स के बारे में कुछ सोचना, एक अट्रैक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. Actually these things are very candid. Your parents can understand. You have to open up with them, and I hope in spite of gossiping and to ask anyone which is not reliable, best thing you can discuss these things with your parents or your teachers also. Okay, so this stimulate gametes production, जैसे I said, male gamete, female gamete, and then becomes mentally emotionally mature. ये this journey is started है ना, mentally and emotionally mature. this journey is only started, but I could not say कि वो mature हो रहे हैं. this is actually ये ट्रांजिशन पीरियड है. ये ट्रांजिशन पीरियड में मेंटली दे आर नॉट स्टेबल, बट दे हैव टू. इफ देयर सराउंडिंग इज गुड, डेफिनेटली दे विल बी मैच्योर पर्सन, बट दिस मैच्योरिटी इज गोइंग टू स्टार्ट. नाउ उनको समझ में आता है इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग. जैसे मदर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माई मदर एंड आई हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड आई हैव टू, मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम. सो द जर्नी ऑफ मैच्योरिटी इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. इंक्रीज इन हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देर इज सडन इंक्रीज इन हाइट्स. सडनली रैपिडली इंक्रीज हो जाता है हाइट. एज आई सेड, ड्यूरिंग पुबर्टी हार्मोन्स सिग्नल द बॉडी टू ग्रो फास्टर. एंड व्हाई दिस इज हैपन? दिस इज हैपन बिकॉज हार्मोन्स गिव सिग्नल टू बॉडी. नाउ द हाइट शुड बी इंक्रीज वेरी रैपिडली, एंड दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज वर्क्स and that the function is taking place. In boys 13 years and in girls it is started from 11 years में. गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है सडन ये जो हाइट का है, एंड बॉयज़ में 13 ईयर्स के बाद इट इज स्टार्टेड. चेंज इन बॉडी शेप, ये जो बॉडी शेप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे गर्ल्स का जो है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल सम गर्ल्स जिनका किसी गर्ल्स का 11 ईयर्स के बाद भी दे विल हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उनका. तो उनका पेल्विक एरिया जो है, जैसे वेस्ट एंड उसके नीचे का जो एरिया है उसका उसका जो क्या बोलते हैं उसको, विड्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बॉयज़ में क्या है, जैसे मैंने बोला कि उनका वॉइस जो है वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाता है. वॉइस बॉक्स उसका साइज बढ़ जाता है. वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं, दैट इज स्टार्ट एनलार्जिंग. देन जैसे उनका आर्म है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा वेट गेन करना स्टार्ट हो जाता है. गर्ल्स में जैसे उनका ये हम जो बोलेंगे ब्रेस्ट जो ऑर्गन्स है उनके, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. मिल्क प्रोडक्शन वाला जो ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज ओनली स्टार्टेड, बट फॉर बॉडी इट इज ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर दिस बॉडी. ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है, सॉरी ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, बट इट इज़ न्यू फॉर बॉडी. सो मेंटली एंड फिजिकली इट इज़ क्वाइट, जिसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ अनस्टेबल स्टेज.
Now we will discuss boys shows faster increase in muscles tissues and girls have faster increase in fats tissues. तो मसल्स बनना बॉयज में ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है एंड गर्ल्स में फैट्स टिश्यूज है वो डेवलप होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है. चेंज इन बॉडी शेप, गर्ल्स का बॉडी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. एज आई सेड कि 20 क्रोमोसोम सेम है, ओनली 1 क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, बट दिस 1 जो क्रोमोसोम है दैट इज गेम चेंजर. वो क्या करता है, वो तो सब कुछ ही अलग दिखने को स्टार्ट हो जाता है. गर्ल्स का बॉडी शेप इट इज कंप्लीटली डिफरेंट दैन बॉयज. जैसे फॉर गर्ल्स फैट मूव्स फ्रॉम द मिडल टू द अपर एंड लोअर बॉडी गिविंग द सर्वाइवर अपीयरेंस. जैसे कर्व बन जाता है हमारे, जैसे बैक से आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, है ना. स्क्रीन पे जो गर्ल का स्ट्रक्चर दिया है, तो इसके पहले बिफोर द गर्ल्स अटेनिंग दिस पुबर्टी लेवल, उसके पहले बॉयज एंड गर्ल्स में नॉट मच डिफरेंस इज देयर. वी सोसाइटी, हम सोसाइटी उनमें गर्ल्स को वी आर जस्ट वेयरिंग दम डिफरेंट, इसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इसके बाल ऐसे होने चाहिए, सी शुड लुक प्रीटी, एंड बॉयज में ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट थिंग्स. वो वी सोसाइटी आर इन्फ्लुएंसिंग दिस थिंग्स इन बॉयज एंड गर्ल्स. अदर देन दैट देर इज नॉट इमेंस डिफरेंस, but the difference is started after attaining the puberty and due to sex hormone. Change in voice का, at puberty the voice box or the larynx begins to grow. ये larynx और voice box बोलते हैं, वो क्या होता है, बड़ा होना, उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड बॉयज में तो वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है. द साइज, द इंक्रीज दैट larynx और voice box size is increase in boys more comparatively girls, and you can see it looks जैसे outside body दिखाई देता है. distinctly we can see in male comparatively than female. female में भी change होता है but it is not that much drastic. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स जो है उसका जो स्किन के नीचे है उनका एक्टिविटी बढ़ जाता है, उसका एक्टिविटी इज इंक्रीज. ड्यूरिंग प्यूबर्टी देर इज एन इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, एंड ड्यू टू दिस मोस्ट चिल्ड्रन आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने एंड पिंपल का प्रॉब्लम हो जाता है, एज आई सेड. Now we will move towards development of sex organs. Sex organs develop होना, this is crucial thing because this all things are new for this children. इनके लिए सब ये बहुत new होता है, you know. तब तक until that time period they are busy in playing, they are busy in talking, they are busy in sharing their experiences and lots of things, blah 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 they were doing. But when this girl or boy attain puberty, from that time period वो क्या हो जाते हैं, they become shy. वो shy हो जाते हैं, they don't want to speak out, बोलना पसंद नहीं करते हैं. उनको उनके अंदर वो एक इमोशन आ जाता है, यू नो, वो फीलिंग आ जाता है कि आई डोंट वांट टू, आई एम समथिंग डिफरेंट. यही वाला जो है समथिंग डिफरेंट मीन्स वो दैट इज नॉट प्राउडीनेस, बट ये जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, हाउ टू कोप अप दिस, ड्यू टू दिस ऑल दिस थिंग्स आर हैपन. टेस्टिस एंड ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग sperms and eggs respectively. Already you have studied in reproduction animals, ovaries producing eggs, that is जैसे हम उसको फीमेल गैमिट बोलते हैं, एंड बॉयज में स्पर्म्स, टेस्टिस आर प्रोड्यूस्ड, टेस्टिस प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवरीज प्रोड्यूसिंग एग्स और ओवम. सो दीज आर मेल एंड फीमेल गैमिट्स. तो ये बनना स्टार्ट हो जाता है व्हेन द बॉडी अटेन पुबर्टी, है ना. पुबर्टी में ये सेक्स हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ये इम्पोर्टेंट था, ये मेन था, जैसे ओवरी का प्रोडक्शन होना, स्पर्म का प्रोडक्शन होना. अलॉन्ग विद दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स. They are certain characters by which male and female are distinguished. As I said कि until this puberty level is not attained, male and female child में there is no that much difference. But this feminism and ये males वाला जो है वो start distinguishing while attaining this puberty level. So beard जो है
बियर्ड आना, उसका जो स्टार्टिंग है वो यू कैन सी, वो हमें फेस में दिखाई देना, उसके लिए जो प्रिपरेशन है दैट स्टार्टेड ये एज से. देन मस्चक्स है, जैसे है ना ये वाला है डेवलप्ड. देन फेशियल हेयर ग्रो, फेशियल हेयर ग्रो भी हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि नाउ ये जो बच्चा है ये मेल में कन्वर्ट होने वाला है ना. अब तक हम जिसको बच्चा बच्चा बोल रहे थे, सो ये अब ही इज गोइंग इन दैट स्टेज कि अब ये जो मेल का जो बोलते हैं हम कैरेक्टर्स, दैट यू कैन सी ये स्टार्ट ग्रोइंग हो रहा है, दैट इज डिस्टिंक्टली यू कैन ऑब्जर्व. डीप वॉइस है ना, ऐसे डीप वॉइस होती है ड्यू टू दिस लैरिंग्स का साइज बढ़ गया है ड्यू टू दिस डीप वॉइस. देन शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, हट्टा कट्टा बनना स्टार्ट हो गया है, तो शोल्डर बिकम्स ब्रॉड एंड हाइट इज इंक्रीज, डेफिनेटली रैपिड हाइट जो है वो बढ़ती है. सो दिस आर एंड दिस टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से इन मेल्स में विच 6 हार्मोन्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. इन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में डेवलप्ड ऑफ मैमरी ग्लैंड. मैमरी ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो मैमल्स जनरली दिस टर्म इज यूटिलाइज, जो फीमेल है ना, जो एनिमल्स की फीमेल्स है, दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड फीडिंग विद देयर, जैसे ब्रेस्ट से फीडिंग कर रही है, दैट इज मिल्क. So that is mammary gland. So development of this mammary gland is taking place. जैसे breast में हो रहा है तो उसका size भी बढ़ना start हो जाता है. These are very candid thing. You have to take it very candidly. Just listen it carefully. Write down when some questions are asking over there, and you should keep in your mind. But no need to bother about it. No need to gossiping about it, because these are very candid thing. And since the life is started over here on this planet, there is male and female, there is no survival of life without male or female. Both should be available on this planet, and then there is possibility of life, my dear students. So very openly accept it. No need to gossip. I'm requesting, and very frankly I'm speaking because I'm your science teacher. For me all these things are very candid, and I hope rest of people should have these things are very candid. Okay. So in female shrilled voice, फीमेल का वॉइस कैसे हो जाता है, श्रिल्ड, ऐसे सॉफ्टनेस जैसा आ जाता है. देन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो स्टार्टेड, तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. एज आई हैव टॉट यू रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जैसे ओवरी क्या करती है, एग्स और ओवम प्रोड्यूस करती है, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है. इफ़ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ना, सॉरी ये नहीं हो रहा है, मेटिंग नहीं हो रहा है स्पर्म का एंड एग्स का, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक साइड का जो एक साइड से ही ओवरी, एक ओवरी इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट एग और ओवम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके साथ उसके कुछ जैसे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो वो रप्चर हो जाएगा एंड इट विल, वो क्या है, ब्लीडिंग होके इट विल रिमूव फ्रॉम योर बॉडी. तो मंथ में से मंथली, मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स मंथली 3 to 5 days का ये ब्लीडिंग का फ्लो होता है. इट इज़ फाउंड इन गर्ल्स एंड इवन इन लेडीज अप टू 45-50 ईयर्स ये होता है. जनरली पुबर्टी लेवल अटेन होने के टाइम जैसे 13-14 ईयर्स में इट कैन बी स्टार्टेड. ओके, इट डिपेंड्स ऑन, अगेन इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी. देन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द, इफ़ फीमेल को अगर बर्थ देना है किसी ऑफस्प्रिंग को, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना इट इज़ मैंडेटरी. ओके, नाउ पेल्विक रीजन वाइडेंस, जैसे ये मैंने बोला वेस्ट के नीचे का है, तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. सो ड्यू टू दिस, जैसे हमें कंसीव करना है, हमें मीन्स फीमेल जब कंसीव करती है बेबी एंड उसका ग्रोथ होता है, डिलीवरी एंड ऑल दैट स्टफ, तो फॉर दैट दिस पेल्विक रीजन वाइडेंस.